Hello friends, how are you? Fine, right. You should say like this. Yes ma'am, we are fine here. So I'm again back in front of you with a new lesson. Okay? So what we did earlier, in last lesson what we did? Nouns, right. So you have to speak these nouns in your daily routine, isn't it? I think you must be clear about all the nouns like countable, uncountable nouns. कुछ remember है कि नहीं? Yes. अभी तो किए हमें few minutes back, है ना? In last lesson, I gave you the meaning of a noun, and we also did what sort of noun? 5 types of noun, and in that we have a countable and uncountable noun. Clear? With countable and uncountable noun, what we did with countable noun is that what is countable noun? Tell me. Hurry up. Countable noun is that noun which is counted, means हम जिन्हें हम गिन सकते हैं. Clear? And uncountable noun is that which can't be count, जो count नहीं हो सकते. अब right now अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ countable और uncountable noun के बारे में, जो हम अपनी speaking में बहुत frequent use करते हैं. Clear? अगर हमें उस चीज का पता होगा तो ही हम speaking कर सकते हैं. अब हमारा मकसद पूरा ये तो नहीं है कि we have to be write it down whole the things and all. ये तो हम पहले भी करके आए हैं क्लासेस में. But why we are here? We are here to learn something new. Clear? So अब देखिए जो countable uncountable noun थे उन्हीं के रिलेशन में आपको मैं कुछ थोड़ा सा और बताना चाहूंगी. Clear? See here. A piece of. Where we are putting a piece of. For example, हमने कुछ sentence बोलना है तो हम उसमें a piece of कहां पे लगाएंगे? Clear? ऐसे हमारे पास बहुत से words आते हैं. A slice of. Where we put this? A cup of. Where we put a cup of. Next is a spoonful of. Next is a glass of. A bottle of. Clear? And last one is a pinch of. Is it clear now? Now I'm going to tell you something about the speaking portion कि हम speaking में ये वाले words कैसे use करते हैं. जब हम बोलते हैं, ठीक है, तब हम ये वाले words, how we use these words. Now I'm going to tell you firstly, you have to clear the meaning of these words. After then I'll tell you that how you use these words in your speaking. Clear? अब देखिए a piece of और a slice of में क्या difference होता है? Tell me. हाँ जी, tell me, hurry up. A piece of और slice of में क्या difference होता है? What is the difference between a piece of, a slice of? सुना तो होगा कभी, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, पेस्ट्री शॉप्स पे जाते हो, क्या होता है वहां पे? स्लाइसेस होते हैं कि पीसेस होते हैं केक के? केक तो सबने खाया है. क्लियर? अब हम बहुत अच्छी पेस्ट्री शॉप पे जाते हैं कभी कभी. क्लियर? सो व्हाट वी कैन बी से टू देम, गिव मी अ पीस ऑफ केक और गिव मी अ स्लाइस ऑफ केक. हम क्या बोलेंगे उनको जाके? हम स्पीकिंग कैसे करेंगे उस चीज की? ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में ही आते हैं. इट्स अ पोर्शन ऑफ अ नाउन. ये नाउन का ही पोर्शन कर रहे हैं हम. Tell me what is the difference. If you're not clear about the difference of the both, then how you can be pronounced the correct thing? Yeah, right. Tell me. So a piece of is what? A piece of is that एक टुकड़ा, means a quantity is heavy as comparison to the slice. Slice होता है एक पतला सा. We won't be say to them टुकड़ा. हम उसे piece टुकड़ा नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे पतला सा जो slice होता है that मतलब टुकड़े का half. एक हमने पीस लिया उसका, when we are putting out the half, at that time we are saying it's a slice. So अब आप पेस्ट्री शॉप्स पे जाते हो, क्लियर? आप उसे क्या बोलोगे? गिव मी अ पीस ऑफ केक और गिव मी अ स्लाइस ऑफ केक. नाउ टेल मी, वो स्लाइस बहुत पतला सा पीस देगा, टुकड़ा देगा आपको, कि एक प्रॉपर टुकड़ा देगा पीस का? पतला सा काटेगा तो टूट जाएगा, एक टर्न वर्ड है ना, टर्न हो जाएगा, सारा कुछ खराब, फैल जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा. बट टुकड़ा क्या होगा? एक प्रॉपर, हमने एक टुकड़ा उठाया एंड वी आर ईटिंग दैट. हम आराम से उसे खा सकते हैं, लाइक पेस्ट्रीज, isn't it? पेस्ट्री इज व्हाट? इट्स अ पीस ऑफ केक. वो केक का एक पीस है, तो हम यहां पे यूज करेंगे अ पीस ऑफ केक.
किस किस का पीस होता है? केक का। चलो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ईटिंग थिंग्स, हम खाने की ही चीजों की बातें करते हैं, क्लियर? आप बताइए अब और किस किस चीज का पीस हो सकता है खाने वाली चीजों में? टेल मी, हरी अप, राइट, हरी अप, टेल मी, सोचो, थिंक। एक तो केक का पीस मैंने बता दिया, और चीज सुना है कभी? पनीर। चीज का क्या होता है? टुकड़ा, राइट। चीज का स्लाइस भी होता है, टुकड़ा भी होता है, तो चीज किस में आएगा? दोनों में। कैसे चीज दोनों में आएगा? फॉर एग्जाम्पल जो हम घर पे चीज यूज करते हैं दैट इज अ कॉटेज चीज एंड वी आर कटिंग इट इनटू अ पीसेस, हम उसे पीसेस में कट करते हैं। बताए करते हैं कि नहीं करते हैं? वी आर कट इनटू अ पीसेस, हम उसे पीसेस में ही कट करते हैं, क्लियर? इसलिए हम बोलेंगे अ पीस ऑफ चीज कम्स इन दैट। हम उसे ऐसे बोलेंगे, ममा गिव मी अ पीस ऑफ चीज प्लीज, है ना? ममा से चीज का टुकड़ा मांगना है, हमने पनीर का टुकड़ा मांगना है, कैसे बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे प्लीज गिव मी अ ममा प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ चीज प्लीज, क्या मुझे आप एक टुकड़ा पनीर का देंगे? यू सेइंग लाइक दिस, क्लियर? अब देखिए जो चीज है इट्स ऑल्सो कम इन अ स्लाइस। अमूल का चीज देखा किसने? वो स्लाइस जो होता है, वी आर पुटिंग आउट ऑन द बर्गर्स, वी आर पुटिंग आउट ऑन द ब्रेड्स, ऑन अ सैंडविचेस, जो स्लाइस चीज होता है इस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, दैट इज अ स्लाइस ऑफ अ चीज, बहुत ही पतला सा होता है, पीस नहीं होता, दैट इज अ स्लाइस ऑफ चीज। सो स्लाइस वी कैन बी यूज इट आउट इन बोथ अ पीस ऑफ चीज और अ स्लाइस ऑफ चीज, ठीक है? चीज को हम दोनों में यूज कर सकते हैं, क्लियर? अब देखिए, आप बताइए और किस चीजों में पीस को यूज कर सकते हैं और किस चीजों में हम खाने की? चिकन खाते होंगे आप लोग, नॉन वेजिटेरियन जो है वो तो बहुत चिकन खाते होंगे, क्लियर? अब जब हम चिकन खाते हैं तो चिकन के हम स्लाइसेस करके खाते हैं और पीसेस करके खाते हैं। हम क्या बोलते हैं? गिव मी 2 पीसेस ऑफ चिकन, और वी आर सेइंग गिव मी अ स्लाइस ऑफ चिकन। टेल मी, हरी अप। We are going to say at that time, give me 1 piece of chicken, give me 2 pieces of chicken. We are not going to say them, give me a slice of chicken. हम उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि please give me a slice of chicken. We are just saying to them only at that time, please give me a piece of chicken. So chicken is also come in this. मैं आपको साथ साथ स्पीकिंग भी करके बता रही हूं, बोल के भी बता रही हूं कि कैसे आप स्पीकिंग में ये वर्ड्स यूज करेंगे अपने, क्लियर? अब पीसेस में देखिए, एक्सेप्ट ईटिंग। एक्सेप्ट का मतलब होता है ईटिंग के अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ कहां कहां यूज कर सकते हैं। अभी आपको अगर पहले वाला लेक्चर रिमाइंड कीजिए जल्दी से, पहले वाला लेक्चर, कि उसमें हमने क्या किया था। उसमें मैंने बताया था मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी, ठीक है, सलाह दी कुछ। तो मैंने क्या बोला था? माय फादर गेव मी सम एडवाइस। यही आई टोल्ड यू अर्लियर एट दैट टाइम कि माय फादर गेव मी सम एडवाइस, कुछ मुझे सलाह दी मेरे पिताजी ने, क्लियर? अब मैं आपको बोल रही हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक टुकड़ी एडवाइस की दी, एक टुकड़ी सलाह दी, क्लियर? एट दैट टाइम नॉन ईटेबल थिंग्स के साथ अ पीस ऑफ कब लगेगा? जब वो अनकाउंटेबल होती है। लाइक माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, रेदर टू से माय फादर गेव मी सम एडवाइस। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक एडवाइस दी है तो आप एक एडवाइस की जगह बोलने की बजाय आप ऐसे बोलेंगे, माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्लियर? हाउ यू से दैट? माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या? अब देखिए अ पीस ऑफ और कहां कहां पे यूज हो सकता है। अभी इंफॉर्मेशन की बात की थी, सूचना की। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो मैं बोलूंगी आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी। यही मैंने आपको करवाया था ना अर्लियर लेसन में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी, मेरे पास कुछ सूचना है। तो सूचना का कुछ का मतलब मैंने पहले बताया था, एक नहीं, एक से ज्यादा, क्लियर? अब मैं बोलूंगी मेरे पास एक सूचना है, तो मैं क्या बोलूंगी, कैसे स्पीकिंग करूंगी उसकी? यस, एट दैट टाइम आई वांट टू बी से आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? यू शुड से
I have a piece of information. Done? Is it clear or not? Tell me, hurry up. I think it must be clear to you. It's very easy. It won't be difficult. And you should speak these things. आपको बोलना भी है. जहां जहां पे ये words use होंगे, तो you should speak like this. ये नहीं बोलोगे कि मुझे एक टुकड़ा चिकन का दो. You should say at that time, give me a piece of chicken. You won't be say, give me मुझे एक चिकन दो. Clear? टुकड़ा चिकन का दो. आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उस टाइम? Give me a piece of chicken. Clear? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, तो ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक सूचना है तुम्हें देने के लिए. यू शुड से व्हाट. क्या बोलेंगे आप उस समय? आप उस समय आपको ये बोलना चाहिए कि आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद मी. क्लियर? कि मेरे पास एक टुकड़ी सूचना है. क्लियर? अब और कहां पे अ पीस ऑफ यूज कर सकते हैं? एज अनकाउंटेबल नाउन. विद अनकाउंटेबल नाउन वी आर यूजिंग अ पीस ऑफ विद होमवर्क. होमवर्क अभी करवाया था, उसके साथ एस नहीं लगता कभी भी. क्लियर? अब मैंने बोला कि मेरे टीचर ने मुझे सिर्फ एक अगर होमवर्क दिया है, एक टुकड़ा होमवर्क का दिया है, मतलब होमवर्क में से एक छोटा सा पोर्शन दिया है करने के लिए घर से, तो आप बोलेंगे माय टीचर गेव मी अ पीस ऑफ होमवर्क. क्लियर? मेरी टीचर ने मुझे एक पीस होमवर्क का दिया, मतलब होमवर्क में से एक छोटा सा कुछ भाग दे दिया मुझे करने के लिए घर से. So I would like to say at that time I have a piece of homework with me. ठीक है? और बताइए और किसके साथ यूज होगा? सामान के साथ. सामान के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत स्पीकिंग में हम यूज करते हैं. मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड. क्लियर? अब आप लोग को जाना आना तो पड़ता ही होगा. कभी हमें स्टेशन जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी पंजाब जाना है, तो कभी हमें दिल्ली जाना है. तो एट दैट टाइम आप जाएंगे तो सामान के साथ. सामान को हम क्या बोलते हैं? सामान को हम क्या बोलते हैं? लगेज. क्लियर? लगेज के साथ ही जाएंगे. अब आपके पास एक लगेज है, तो आप उसे कैसे बोले? आई हैव वन लगेज. आप बोलोगे आई हैव अ पीस ऑफ लगेज विद मी. ये ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है कि आई हैव अ लगेज विद मी. बताइए, अगर आपके पास एक लगेज है तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव अ लगेज. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आई हैव अ पीस ऑफ लगेज विद मी. सो प्लीज कम एंड पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन. मतलब मेरे पास एक टुकड़ी सामान है, प्लीज कृपया करके आप स्टेशन पर आइए और मुझे लेके जाइए. क्लियर? तो क्या यूज होगा यहां पे? अ पीस ऑफ लगेज. तो ये सारा पोर्शन आपका स्पीकिंग में यूज होगा. इन स्पीकिंग यू आर यूजिंग दिस एज वेल एज इन राइटिंग ऑल्सो. इसलिए आपको ये सारी चीजें करवाई जाती है, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हम कहां पे क्या चीज इंग्लिश में यूज करेंगे स्पीकिंग में. क्लियर? हम उसे राइटिंग में भी यूज करेंगे, बट इन स्पीकिंग हाउ वी यूज दैट, यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. क्लियर? And what come next? A slice of. I told you few minutes back. अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताया था a slice of क्या होता है. बताइए. a slice of बताया था एक बहुत ही टुकड़े से स्मॉल पोर्शन, बहुत ही स्मॉल पोर्शन टुकड़े से, a piece से स्मॉल पोर्शन, that is called a slice. For example, अनियन होता है सबके घरों में. क्लियर? We have a onion. Onion means प्याज. तो हम प्याज को जब कट करते हैं खाने के लिए, तो वी आर कटिंग इट इनटू अ स्लाइसेस और वी आर कटिंग इट इनटू अ पीसेस. टेल मी. वी आर कटिंग इट इनटू अ स्लाइसेस. डेफिनेटली हम पीसेस में कट करके नहीं खाते हैं अनियन को, हम स्लाइसेस में कट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्लियर, खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में गए, क्लियर, एट दैट टाइम यू कैन ऑर्डर इट आउट द सैलेड देयर. सैलेड को ऑर्डर करते हैं, सलाद को. सैलेड को जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमें टुकड़े तो नहीं रख के दे देते प्लेट में. क्या वो हमें टमाटो के टुकड़े रख के दे देते हैं प्लेट में, अनियन के टुकड़े रख के दे देते हैं, कुकुम्बर के टुकड़े रख के दे देते हैं? नो, वो पीसेस नहीं रख के देते हमें. क्या देते हैं? दे आर गिविंग अस द सैलेड इन अ स्लाइस फॉर्म. स्लाइसेस होते हैं हर चीज के उसमें. कैसे? जब आपने ऑर्डर किया, नॉर्मली जो लड़कों की आदत होती है, चिकन वगैरह खाते हो ना आप लोग, तो उसके साथ यू आर गेटिंग आउट दैट अनियंस विथ दैट ग्रीन चटनी, है ना?
बड़ा ही खट्टा खट्टा सा स्वाद। तो उसमें क्या होता है, आप पीसेस खाते हो अनियन के? You are eating the pieces at that time? No, you are eating the slices of the onions at that time with the green chutney. And if you want to be order it out, अगर आप टेबल पे खा रहे हो उस समय रेस्टोरेंट में बैठ के, आपके पास अनियंस खत्म हो जाते हैं, तो आप वेटर को बोल के क्या बोलोगे? प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ अनियन? नो, प्लीज गिव मी सम मोर स्लाइसेस ऑफ अनियंस। स्लाइसेस यूज होगा वर्ड वहां पे, क्लियर? तो अनियन के स्लाइसेस, टोमेटो के स्लाइसेस, तो वी आर यूजिंग स्लाइसेस ऑफ दैट। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल स्लाइस की, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, अ वेरी इजी एग्जाम्पल, ब्रेड, इजंट इट? वी आर यूजिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ना, कि टुकड़ा हम ब्रेड का यूज करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, वी आर यूजिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि स्लाइसिस में ब्रेड आती है ना, ब्रिटानिया की, हार्वेस्ट गोल्ड की और परफेक्ट की, बहुत सारी ब्रेड्स आती हैं, तो वो दैट इज कम इन द स्लाइसेस, दैट इज नॉट कम इन द पीसेस। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्लाइस ब्रेड। टोस्ट, टोस्ट क्या होता है बताइए? टोस्ट जो होता है वो ब्रेड का ही सेका हुआ टुकड़ा होता है। दैट इज ऑल्सो अ स्लाइस, दैट इज नॉट अ पीस। आजकल भी ब्रेड के पीसेस भी करते हैं हम, बताइए कैसे? लोफ देखा होगा आपने, कभी बेकरीज में गए हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड बेकरीज में, वी आर हैविंग नॉट अ स्लाइसेस। एक तो ये होता है कि हमारे पास ये स्लाइस होते हैं, ये देखिए, सी हियर, दैट इज अ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ये 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस, 4, 5, 6, ये क्या है? ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, क्लियर? अब मैं बता रही हूं कि हम पीसेस ब्रेड के कैसे करते हैं। आपके मार्केट में, बेकरी शॉप में एक ये इतनी लंबी तरह की ब्रेड अवेलेबल होती है, बहुत लंबी सी ब्रेड, क्लियर? उस ब्रेड को हम क्या बोलते हैं? वी आर सेइंग देम लोफ। ये चीज माइंड में रखना अपने, ठीक है? स्पीकिंग करते हो आप लोफ बोलेंगे, इसे ब्रेड नहीं बोलेंगे, ब्रेड का लॉफ बोलेंगे, ब्रेड लॉफ बोलेंगे। ये लॉफ मार्केट में बहुत तरह से अवेलेबल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, French loaf is there, masala loaf is there, garlic loaf is there, means उसमें आपको गार्लिक की फ्रेग्रेंस होगी, एरोमा होगी उसमें। गार्लिक क्या होता है? लहसुन, लहसुन वाला लॉफ भी होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, चलो टेक एग्जाम्पल ऑफ गार्लिक लॉफ एट दैट टाइम। सो दिस लॉफ इज हैविंग अ गार्लिक लॉफ, क्लियर? सो जब हम इन्हें कट करेंगे तो हम इन्हें पीसेस में कट करेंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पीस ऑफ लोफ, दिस इज नॉट अ स्लाइस ऑफ लोफ, दिस इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। सो दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड and this is a slice of bread. So you should be say at that time, this is a piece of bread and this is a slice of bread. Now it's clear to all of you the difference between slice and piece. Is it clear? Okay. So that is the only difference between slice and piece. So in your speaking you have to use very carefully these words. Where to use piece of, where to use slice of. I think it should be clear to you. अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ कप ऑफ कहां कहां पे हम लगाते हैं, हम अपनी स्पीकिंग में कहां कहां पे बोलते हैं अ कप ऑफ? टेल मी, हरी अप। वी आर सेइंग अ कप ऑफ। अ कप ऑफ कहां कहां बोलते हैं हम? क्या हम बोलते हैं कि मुझे 1 कप दूध का दो, 1 कप पानी का दो, गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, गिव मी अ कप ऑफ वाटर? क्या हम बोलते हैं ये? 1 कप पीते हो आप पानी का, 1 कप पीते हो आप मिल्क का? नो, हम कप किसका लेते हैं? टी का एंड कॉफी का, राइट? वेरी गुड। अ कप ऑफ हम लेते हैं, वी आर सेइंग गिव मी अ कप ऑफ टी। आप कहीं गए हैं ऑफिसेज में, ठीक है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं आप कभी किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, क्लियर? सो एट दैट टाइम आपको कॉफी या टी लेनी है, आपको किसी को यह पूछना है पहले, तो आप कैसे पूछेंगे उसे? आप ये बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी? आप, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप तो ऐसे बोल दोगे वुड यू लाइक टू हैव
अ ग्लास ऑफ कॉफी, अ ग्लास ऑफ टी, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट तो आप कैसे स्पीकिंग करेंगे बताइए। अगर हमें पता है कि कप के साथ क्या लगता है, सिर्फ टी और कॉफी लगता है कप के साथ, ये देखिए इधर, सो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग वेरी इजीली कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय का पीना चाहेंगे, ऐसे पूछा जाता है आपसे, है ना। और हम आंसर कैसे देते हैं उसका, यस आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्लियर हुआ। सो इस तरह हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफी का पीना चाहते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सेंटेंस, अगर किसी को पूछना है, किसी को क्या बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होता है आपके स्पीकिंग में, ये मैंडेटरी है आपको लर्न करना। जब भी आपको किसी को ऑफर करना है, कुछ पूछना है चाय के लिए, कॉफी के लिए, एट दैट टाइम आप क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय का पीना चाहेंगे, या फिर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी का पीना चाहेंगे। सो अगर यही चीजें नहीं हमें पता होगा तो हम नहीं बोल सकते अपनी स्पीकिंग में, वी वॉन्ट बी यूज दीज थिंग्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इज इट क्लियर दिस टू यू, कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे इसके रिगार्डिंग अ कप ऑफ टी और कॉफी। क्लियर। अब इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए स्लाइस का भी फॉर योर नॉलेज। जैसे आप लोग ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, आपके मामा बटर टोस्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है, टोस्ट दे रहे हैं, बटर लगा रहे हो आप, या सिंपल आप ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हो ब्रेड के, उस पर बटर लगा के खा रहे हो, और आपके पास ब्रेड खाते खाते खत्म हो जाती है, तो आप ऑर्डर कैसे करोगे दोबारा से उस चीज को। आप बोलोगे मामा प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लीज, यही बोलोगे ना। अगर नहीं आएगा तो क्या बोलोगे, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, नो, क्या बोलोगे, गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लीज आप मुझे एक स्लाइस ब्रेड का दीजिए। आप लोग पीस नहीं बोलोगे उस टाइम पे। क्लियर, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताई है वो। इज इट क्लियर टू यू। अब आइए आप नेक्स्ट, अ स्पूनफुल ऑफ। स्पूनफुल ऑफ क्या होता है, एक चम्मच भर के। अब बताइए एक चम्मच भर के क्या हम मांग सकते हैं किससे, जब हम चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं या कुछ भी ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ मिल्क शेक्स ले रहे हैं, शेक्स पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ स्पूनफुल ऑफ की जरूरत पड़ती है। स्पूनफुल ऑफ मतलब एक चम्मच भर के क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को, एट दैट टाइम व्हाट वी नीड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन दैट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वी आर हैविंग अ टी सेट, टी पॉट सेट भी होता है हमारे पास एक, ठीक है। नॉर्मली तो हम कप्स में चाय पीते हैं, बट इन द अर्लियर टाइम्स और नाउ डेज ऑल्सो इफ वी आर गोइंग टू सम वेरी गुड कंपनी एंड इफ यू वांट टू बी हैव सिट विद एनी सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हम बैठेंगे चाय पियेंगे, तो उस टाइम पे ऊपर कप्स में चाय नहीं आएगी आपके पास। अ प्रॉपर टी पॉट सेट इज देयर इन विच द टू पॉट्स आर देयर, इन वन पॉट milk is there, in second pot what is that, I think so that tea is there, or water tea is there. Clear. And in small pot sugar is there. Clear. So the cups and saucers are also putting out over there in that plate tray. Clear. So in that pot, so what is the difference of that? It means firstly you have to pour मतलब डालना। देखिए इधर मैंने एक वर्ड यूज किया pour। पोर का मतलब होता है कोई लिक्विड चीज डालना किसी चीज से। सो फर्स्टली यू हैव टू पोर अ टी वाटर इन द कप, आपको टी वाटर कप में डालना होगा। फिर टेक अ पोट ऑफ मिल्क, मिल्क का पोट लेके आपको थोड़ा सा मिल्क डालना होगा उस कप में। अब ये सारे विदाउट शुगर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ही साथ में एक स्मॉल पोट होता है जिसमें दे आर हैविंग अ शुगर, जिसमें शुगर होती है। अब आप लोग बैठे हुए हैं, उनका सर्वेंट डाल के बना रहा है चाय आपके लिए, वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव 1 spoonful of sugar or 2 spoonful of sugar,
तो आप लोग बताएंगे आई वुड लाइक टू हैव 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर। तो ये स्पीकिंग में क्या हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है, और कैसे हम स्पीक कर रहे हैं उसको ये आपका भी पता चलता है कि आप लोग कहां से सीख के आए हैं, कैसा सीख के आए हैं, आपको नॉलेज है भी इन चीजों की कि नहीं है। सो इस तरह हम यूज करते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, मतलब 1 चम्मच शुगर का। आई वुड लाइक टू हैव 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर इन माई टी, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह हम अ स्पूनफुल ऑफ शुगर अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए अ स्पूनफुल ऑफ और किस चीज का हो सकता है, अ स्पूनफुल ऑफ इज ऑल्सो ऑफ कॉफी, कॉफी का भी होता है ए स्पूनफुल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल when we are preparing the tea in the water, we are putting out that tea in that. Clear? The small corns of the tea in the pot, and after that we have to sieve them. Sieve मतलब छानते हैं उसे, तो ही पीते हैं। बट कॉफी को हम कभी छानते हैं, सीव करते हैं? नो, we are directly put the coffee in the milk and stir it, and after that we are serving that to you people. स्टर करते हैं, डालते हैं, हिलाते हैं और आपको सर्व कर देते हैं। इसलिए ही ये भी स्पूनफुल के नाम से ही पूछा जाता है। वुड यू लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ कॉफी और 2 स्पूनफुल ऑफ कॉफी? आई थिंक स्पूनफुल ऑफ कॉफी इज सफिशिएंट इन 1 cup, so I would like to say at that time, okay, I would like to have a coffee, a spoonful of coffee in a cup of coffee. समझ में आया? क्लियर हुआ ये कैसे मैंने बोला? आप लोग ऐसे कॉफी को यूज करेंगे। इधर लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका, शुगर का। आई वुड like to have a spoonful of sugar in a cup of tea. Clear? या फिर I would like to have a spoonful of coffee in a cup. I would like to have a spoonful of coffee in a cup. Clear? So इस तरह से आप ये दोनों चीजों को स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। Is it clear to all of you? Right, it's really good one that आपको सारा समझ में आ रहा है। और ये मैं पूछूंगी भी आपसे, आपको जल्दी से रिवाइज करके भी बताना होगा। ये नहीं है कि आप नोट ही कर रहे हो। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मेरे पिताजी ने मुझे एक एडवाइस दी। टेल मी, माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। राइट, अब मुझे सेंटेंस बना के बताइए आप लोग ब्रेड के ऊपर। गिव मी ए स्लाइस ऑफ ब्रेड कि पीस ऑफ ब्रेड? गलत हो रहा है ना, पीस आना चाहिए। नहीं, what you have to be say at that time? A slice of bread. Very good. Next, cup of. किसी को कुछ पूछना है हमें, चाय के लिए, कॉफी के लिए, कैसे पूछेंगे? हम लोग ऐसे पूछेंगे, would you like to have a cup of tea or would you like to have a cup of coffee? Clear? बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग तो। नेक्स्ट, a spoonful of sugar or coffee. a spoonful of मतलब चम्मच भर के, कैसे काम पे यूज करेंगे? जब इतना सारा मैंने अभी लेक्चर आपको दिया है कि जब हम भी सेलिब्रिटी या बहुत ही अच्छे हाई लेवल के लोगों के साथ बैठते हैं, तो एट दैट टाइम दे आर नॉट सर्विंग द टी इन 1 cup. वो सर्व नहीं करते एक कप में टी, वो पूरा क्या पूरा टी पॉट लाते हैं, उसमें सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट रखी होती हैं। और एट दैट टाइम दे पीपल आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू कि हाउ मच ऑफ शुगर डू यू वांट इन योर कप ऑफ टी? तो एट दैट टाइम आप क्या आंसर दोगे? आई वुड लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ टी। और कॉफी भी, आई वुड लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ कॉफी इन अ कप। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लिया सब आपने? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बी फास्ट, मैं रब कर रही हूं ऊपर का पोर्शन। हरी अप, बी फास्ट। स्लाइसेस, पीसेस, सब क्लियर हो चुका है ना? और बी श्योर, प्लीज यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद आप लोग इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज, इन चीजों को जो भी हमें हिंदी में बोलेंगे उनको इंग्लिश में यूज करना है आपको।
हिंदी अब छोड़ दीजिए, हम पीछे छोड़ देंगे हिंदी को, बिकॉज वी आर हियर टू स्पीक समथिंग, वी आर हियर टू लर्न समथिंग, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको ये चीजें पता होना, वोकैब्स पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ही आपको ये चीजें करवाई जा रही हैं कि ताकि आपको पता रहे कि नाउन जो हमने किया है उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम स्पीकिंग में बोल सकते हैं। क्लियर? जो भी ग्रामर का पोर्शन कवर होगा उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्पीकिंग में हम यूज करेंगे। क्लियर? ताकि आपको पूरा का पूरा टोटली क्लियर हो जाए कि हम स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे उसे। लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बी फास्ट। Done? Be fast, hurry up. Now we are going to discuss about these three: a glass of, a bottle of, a pinch of. Clear? Can I rub this? The upper portion till slice off? Okay. Next is a glass of. Now you tell me, एक ग्लास हम किस किस के साथ बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं? अ ग्लास किस चीज का होता है? चाय का होता है कि कॉफी का होता है? टेल मी, हरी अप। अ ग्लास ऑफ टी, गिव मी अ ग्लास ऑफ टी बोलते हैं हम, और गिव मी अ कप ऑफ टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या चाहिए हमें? एक गिलास पानी चाहिए। वी आर सेइंग गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और हम ग्लास ऑफ कहां यूज करते हैं? मिल्क। गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध का दीजिए। ये क्लियर हुआ? अब जैसे आप लोगों ने क्लास में से बाहर जाना है पानी पीने के लिए, क्लियर? तो आप लोग कैसे बोलेंगे? मे आई गो टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मैं एक गिलास पानी का पीने जा सकता हूं? क्लियर? तो आप लोग ऐसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग घर पे कई ऑफिस में जाते हो, क्लियर? या लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी शोरूम। जैसे आप कभी कोई मोबाइल फोन खरीदने गए और कोई लैपटॉप्स खरीदने गए, आप वहां पे जाके उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? बात करते करते आपको प्यास लगती है, तो आप लोग कैसे बोलोगे उनको? एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास पानी का चाहिए। क्लियर? हम उसे ऐसे स्पीकिंग करेंगे, हम उसे ऐसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, नोट इट डाउन, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोग उससे ऐसे बोलेंगे, कृपया करके आप मुझे एक गिलास पानी का दीजिए। क्लियर? तो हम ऐसे यूज करते हैं ग्लास को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना इसमें? नेक्स्ट देखिए, अब बॉटल ऑफ कहां पे यूज करते हैं हम? वेयर वी आर यूजिंग अ बॉटल ऑफ? टेल मी, हरी अप। बॉटल ऑफ हम वाटर और मिल्क के साथ ही यूज करते हैं। बॉटल वाटर की भी होती है और बॉटल मिल्क की भी होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पानी की बॉटल को परचेज करना है, उसे कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट टू परचेज अ वाटर बॉटल। क्लियर? या अ बॉटल ऑफ वाटर। आई वॉन्ट टू परचेज ए बॉटल ऑफ वाटर। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको कि मुझे एक पानी की बॉटल खरीदनी है।
क्लियर हुआ ये? आई वॉन्ट टू परचेज अ बॉटल ऑफ वाटर. एंड लास्ट इज योर, जो लास्ट हमारा इसका स्पीकिंग का और राइटिंग का पोर्शन रहता है, दैट इज अ पिंच ऑफ. क्या रहता है? अ पिंच ऑफ. अब अ पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी. एक चुटकी कहां पे यूज होता है? अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं हमेशा हम. फॉर एग्जाम्पल, पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. ठीक है, इस बाउल में एक चुटकी नमक डालिए. पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके खाने में नमक कम है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी टेस्ट और लाइकिंग्स होती हैं. क्लियर? हाउ टू ईट एंड ऑल. सो कई लोग खाने में सॉल्ट कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं. अगर तो कम है सॉल्ट, ठीक है, आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माई वेजिटेबल. प्लीज पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माई दाल एंड ऑल, जो भी आप खा रहे हैं. तो यू शुड से लाइक दिस. इसको हम स्पीकिंग में ऐसे यूज करेंगे, पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन होल दिस? जो भी हमने अभी किया है, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, और फिर क्या क्या था हमने? अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ बॉटल ऑफ, अ पिंच ऑफ, अ स्पूनफुल ऑफ. 7 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं. स्पीकिंग में हम इनको नाउन्स को कैसे यूज करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को. क्लियर? अर्लियर आई टोल्ड यू कि सम कहां कहां पे लगता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना? सम का मतलब होता है कुछ, वो कहां कहां पे लगता है वो बताया था. और उसके बाद मैंने बताया कि आप अ पिंच ऑफ, स्पून फुल ऑफ, अ ग्लास फुल ऑफ, अ कप ऑफ, स्पून फुल ऑफ एंड अ पिंच ऑफ कहां कहां पे यूज करेंगे. सो आई गेव यू ऑल द डिटेल ऑफ दैट. इज इट क्लियर? आई होप कि आज के बाद से आप लोगों को गलती नहीं होगी इसमें. ठीक है? आई होप फ्रॉम यू पीपल, यू आर वेरी गुड एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट. हम लोग सब पढ़ के आए होते हैं, बस इनको गो थ्रू करने की और रिमाइंड करने की जरूरत होती है, और अपनी वे में लाने की, हम बोले कैसे. अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कहां कहां पे हम ये चीजों को स्पीकिंग कर सकते हैं, कहां कहां पे बोल सकते हैं. सो ट्राई टू यूज टू स्पीक दीज वर्ड्स, एटलीस्ट दीज इन इंग्लिश. ओके? बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. अभी अभी हम आगे चल के बहुत हाई लेवल पे जाएंगे. अभी आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, अदरवाइज यू कांट बी स्पीक दैट. सो इन चीजों को क्लियर कीजिए और छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में लाइए. क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं, कैन आई रब दिस? नाउ योर टॉपिक ऑफ नाउन हैज फिनिश्ड. आपका टॉपिक नाउन का खत्म हो चुका है. अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड व्हेन वी डिवाइडेड इट इनटू अ पार्ट्स, that is called parts of speech. And there are total 8 parts of speech in your English grammar. So from that 8 parts of speech, what we did only 1 parts of speech, that is noun. Now it's turn to the second one, that is pronoun. So make this thing clear in your mind or as well, कि ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन से इस pronoun को देखना कि कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे इसमें. क्लियर? बिकॉज ये भी आपकी स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इट्स ऑल्सो वेरी मच नीडेड इन योर स्पीकिंग while you are speaking that, because हमें नहीं पता होता कि this कहां पे लगाना है, that कहां पे लगाना है, those, these, ये चीजें नहीं पता होती हैं हमें. These are the very small things, but we don't know about that. Clear? अब pronoun की सबसे पहले आप definition लिखिए. A pronoun is a word
which is used instead of noun. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है. इंस्टेड का मतलब होता है उसकी जगह पे यूज किया जाता है नाउन की. दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है. एक और डेफिनेशन मैंने उस टाइम आपको बताई थी. द चीफ यूज ऑफ प्रोनाउन इज टू सेव रेपिटेशन ऑफ द नाउन. द चीफ यूज ऑफ pronoun is that to save repetition of noun. Clear? The chief use of pronoun is that to save repetition of noun.